Hello student, I welcome you to today's session where we'll begin with your new chapter, that is refraction of light at a plane surface. Okay, this is your new chapter, okay, and this is also a beginning of the whole scenario of optics. As you know, the optics is nothing but the study of light and its behavior is called as optics. And this is another, you can say, if you'll study the optics in which the ray, if you consider the speed of light or the light to be a ray, then you all these things will be studying in ray optics. That means if a light is considered to be moving in a straight line like ray, then we can say that we are studying all these things in ray optics. All these things, that means कि जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम लाइट को एक रे की तरह बिहेव करते हैं. दिस इज लाइक अ लेट, सपोज दिस इज लाइट and this is light ray, एक रे की तरह हो गया. दिस इज हाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट लाइट रे. ओके, और जब आप लाइट पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट. लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस और विजिबल टू आवर आई. कोई भी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में रहता है, दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर विजिबल टू अस ओनली बिकॉज ऑफ लाइट. व्हाट हैपन्स कि light, if falls on any particular object from which reflection happens, and that reflected light comes to our eye, because of which you are able to because of which you are able to see that particular object. Okay, so and you also know that light may compose of different colors, like light composed of 7 different colors. Light में 7 different colors होता है. So depending upon that we are able to see different colors also. Like कि हाउ वी आर एबल टू सी कलर, हम कलर कैसे देख पाते हैं. लाइट इज इट सेल्फ कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. इफ दिस इज अ रेड मटीरियल एंड अ वाइट लाइट इज एंड अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है, तो वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट. सो आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन you are able to see a red color of this particular object. Why? Because the light red color is only reflected and it is coming to your eye. Rest other colors like Vibgyor, which is composed of the light is composed of okay, so light is composed of 7 different color like violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, so out of all these colors, which is combination of all these colors, is nothing but a white light. Okay, and so only red color is being reflected, rest other light source are being absorbed by this particular material. So that's why you are able to see that red color of that particular object. Okay, so likewise you can say you are able to see different colors, you are able to see different objects, so because of light only. And light, if you study more deeply, that means light can be classified as a wave also, it can also be classified as particle. That means the light shows duality, तो dual nature show करता है. ठीक है, so और dual nature, that means कि light can also behave like a particle, it can also behave like a wave. And the study or the demonstration for the light to be a particle was demonstrated by Einstein in his photoelectric effect experiment, for which he got a Nobel Prize. ठीक है, आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है, दैन ओके. सो लाइट वी ऑलरेडी नो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस अराउंड अस. ठीक है, दैट मेक्स सराउंडिंग विजिबल टू अस. Okay, and one more thing, apart from these lights which is coming from any particular light source, or you can say on earth, sun is the direct form of energy to the direct form of energy on earth is sun. Okay, so apart from these rays which is called light ray, there are numerous other light source light rays like like violet rays, like x-rays, like gamma rays and cosmic rays and so on, and like infrared rays, like microwave, like radio waves, which is depending upon different wavelength and different frequency of one particular wave. It may be classified as Vibgyor, it may be classified as violet, ultraviolet rays, it can be classified as x-rays, depending upon different frequency and wavelength. Okay, so one more thing I would like to mention here is, that means कि
the wavelength of light. We'll be studying it about all these things like wave spectrum. Okay, and we already know that we already know about wavelength and frequency of any particular wave. Okay, so wavelength of violet is around 400 nanometer, and the wavelength of this red light is around 700 nanometer. That means wavelength of red is greater than the wavelength of violet. Okay, so and in between you will get विबग्योर, ये सारे इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ये सारे इन बिटवीन आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इससे और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ पे वेवलेंथ कम होता जाएगा तो आपको जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बिकॉज याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ दीज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कांस्टेंट. स्पीड सबका सेम है. दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें कंपोज ऑफ विबग्योर, ठीक है, रेड, इंडिगो, वॉयलेट, ऑल दीज थिंग्स आर कंपोज्ड. ठीक है, एंड दीज ऑल वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू c, which is equivalent to 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum or in air. So एयर और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड यही रहेगी. नॉट ओनली लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, सबकी स्पीड यही रहेगी. ठीक है, सो दैट्स वाई यू मेक यूज ऑफ रडार. रडार टेक्नोलॉजीज में क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रडार में यू मेक यूज ऑफ रेडियो वेव्स बिकॉज द रेडियो वेव्स कैन ऑल्सो ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, and this speed is the fastest speed gained by any particular object. इससे ज़्यादा किसी की स्पीड हो नहीं सकती like speed of light. We can also make certain objects to move slowly, move closer to the speed of light, but we cannot achieve that particular speed. हम इतना अचीव नहीं कर सकते. ओनली लाइट और डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी आपके वेव्स हैं सबकी सेम स्पीड है. तो और ये भी याद रखना है आपको कि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर इन सब का फ्रीक्वेंसी घटता है. जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इस पर्टिकुलर केस में लाइक कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ घटती जाएगी. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट. c इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. दिस इज कांस्टेंट. इफ दिस टर्म इज कांस्टेंट तो ये बढ़ाने पे ये घटेगा, ये घटाने पे ये बढ़ेगा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू, देयर इज वन वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन होता क्या है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में. बाकी सब हम समझ में आ गया हमें कि ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे हम लाइट को रे समझते हैं. ठीक है, लाइट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के और भी कौन से वेव होते हैं. लाइट वेव की स्पीड हमेशा यही रहेगी एयर में और वैक्यूम में. ठीक है, सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन नाउ? So refraction is nothing but bending of light while light travels from one transparent medium into another is called as refraction. ठीक है, that means कि एक मीडियम से दूसरे डिफरेंट मीडियम में जाएगा लाइट तो बेंड करेगा. ठीक है, that phenomena is called as refraction. इसका मतलब कोई भी एक दो सरफेस लेते हैं हम. सपोज करो ये एयर है एंड दिस इज वाटर. ठीक है, सो दीज आर ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम्स. ठीक है, एंड लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन इट ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस. तो एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. So this is your perpendicular to the surface. So that means if the light comes तो एक सरफेस से दूसरे एक मीडियम से ट्रांसमिट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा whose densities are different, then the light will bend. अपना ओरिजिनल पाथ गेन नहीं करेगा वो. It won't move like this. ठीक है, वो बेंड कर जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, देखो ये इसका ओरिजिनल पाथ से ऐसे डेविएट हो गया इधर. ठीक है, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन एंड इट हैज गेट डिफरेंट एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ. बहुत सारा एप्लीकेशन होता है इसका. थोड़ा सा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा और आइडिया लगा देते हैं और डिफरेंट क्या क्या एप्लीकेशन होगा. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि व्हाई सच थिंग हैपन्स. ठीक है, वी नो दैट रिफ्रैक्शन हैपन्स ओनली व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम और डिफरेंट डेंसिटीज. ठीक है, इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है.
तो वो बेंडिंग होता है. सो नाउ वी नो दैट कि जिसका डेंसिटी कम है, ठीक है, लाइक एयर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम. वी कॉल in this particular case air is optically rarer medium and water is called as optically denser medium. Why we call it as optically denser and optically rarer medium? Because the density of air is less and speed of light in air is more. ठीक है, तो जिस मीडियम में भी जहाँ पे अगर कंपैरिजन दो मीडियम का करेंगे, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का करेंगे, तो एयर में स्पीड ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हम वाटर के कंपैरिजन में, और वाटर में लाइट की स्पीड कम होगी. ठीक है, एज कंपेयर टू एयर. तो एयर में स्पीड ज़्यादा है, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है, डेंसर मीडियम में चला जाएगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. सो वी कैन से optically rarer medium are those medium in which the light speed is more as compared to different other medium. ठीक है, and optically denser medium are those medium in which the light speed is less as compared to optically rarer medium. So we can classify the any particular transparent medium into optically rarer medium or optically denser medium. Okay, अब एक और चीज़ देखिए. Suppose करो there is two interface like water एंड ग्लास. अब क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, वाटर डेंसिटी ऑफ ग्लास इज मोर एज कम्पेयर टू द वाटर, तो ये ग्लास हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर एंड वाटर हो जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो दैट इज रिलेटिव टर्म. दीज आर ऑल नथिंग बट रिलेटिव टर्म. ठीक है, सो क्योंकि ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, तो एक चीज़ याद रखो हमेशा कि if light ray moves from optically rarer medium into denser medium, light will move towards the perpendicular, that is normal to the surface. ये normal क्या है? Perpendicular to the surface. तो यहीं पे हम थोड़ा सा एक दो टर्म्स और ही आपको समझा देते हैं. एंड हाउ अ लाइट रे बेंड्स, उसके बारे में भी थोड़ा हम बता देते हैं. ठीक है, सो अभी तक एज ऑफ नाउ हमने ये पढ़ा कि कोई भी पर्टिकुलर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, सो दैट मीडियम कैन बी क्लासिफाइड एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, सो दैट मीडियम इज कैन बी क्लासिफाइड एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, एंड द लाइट में बेंड डिपेंडिंग अपॉन different mediums. Okay, so one more thing here I would like to introduce is a concept of refractive index. So what is refractive index? As of now आपको इतना थोड़ा सा याद रखें कि जिस मीडियम जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, and this refractive index of any particular medium, just a minute, refractive index, ठीक है, it is denoted by symbol mu. This is a Greek symbol. It is denoted like this. Sometimes it is also denoted by this small n symbol. ठीक है, सो किसी भी पर्टिकुलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ठीक है, सो अगर किसी मीडियम का लाइक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा. ठीक है, एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई लेट यू नो. ठीक है, हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको समझा देंगे. ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, बेंडिंग ऑफ लाइट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, एंड इट हैपन्स व्हेन वन पर्टिकुलर मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर एंड अनदर मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली रेयर मीडियम हैज़ लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है. ठीक है, लाइक एयर की बात करूँ मैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. ठीक है, वाटर की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33. अगर मैं ग्लास की बात करूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 के अराउंड. ठीक है, तो ये थोड़े टर्म्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है,
विल ऑल्सो कवर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो एज ऑफ नाउ आपको इतना तो थोड़ा आइडिया लग गया कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। और एक चीज़ और याद रखें, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का बढ़ेगा उसमें लाइट की स्पीड कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है तो स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर वही होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो एयर के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड अ लाइट कैन हैव। ठीक है, तो एयर के अंदर उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, तो उस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 है। ठीक है, तो अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे लाइक वाटर, तो उसमें स्पीड उसकी एयर स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम हो जाएगी। दिस इज द रीजन फॉर विच द लाइट बैंड्स। ठीक है, व्हाट वुड बी द रीजन for different mediums have different refractive index. ठीक है, and in different mediums speed of light is different, so that's why while light moves from one medium into another, ठीक है, that's why refraction phenomena takes place. So this is the reason behind it. ये इसका reason होगा why refraction happens, because in different medium speed of light is different, so that's why रिफ्रैक्शन फिनोमेना हैपन, इसलिए रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। ओके, और थोड़ा सा अब हम थोड़ा टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक कि रिफ्रैक्शन में अगर कौन कौन से रेज होते हैं और कैसे ये बेंड करता है और कैसे डिफरेंट मीडियम्स में और कैसे बेंड करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया तो लग गया, रिफ्रैक्शन तो होता है, बेंडिंग। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको बता दें कि फॉर एनी इंटरफेस लाइक टू इंटरफेस बिटवीन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 है, दिस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम 1, दिस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम सेकंड। तो इनके इंटरफेस पे दो चीज़ होती है। सपोज करो दिस इज अ लाइट एंड इट फॉल्स ऑन इट, ऐसे फॉल करता है, तो एक चीज़ तो हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। one thing is happen is reflection of light ray will also take place, as well as refraction of light rays. This is called refraction as well as reflection of light will take place, दोनों चीज़ होंगी। सपोज करो यहाँ से 100% इंटेंसिटी से लाइट रे इस पर फॉल किया था, तो कुछ लाइट रे, कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड बी रिफ्लेक्टेड and some intensity of and most of the light would be refracted, ज़्यादातर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सपोज करो 10% इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड बी रिफ्लेक्टेड एंड मे बी 90% इसमें रिफ्रैक्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश्ड होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड ऑल्सो अब एक थोड़ा सा टर्म पढ़ लेते हैं हम। देखो, between any two interface, the light falling between on any particular interface is called as incident ray. Incident ray, इसी को हम incident ray कहते हैं। और and this is and the normal to the or the perpendicular to the surface is called as normal. Perpendicular to any particular transparent medium is called as normal. Light falling onto a transparent medium is called as incident ray. ठीक है, and the light ray after it goes and it bends, that ray is called as refracted ray. This is not reflected ray, this is refracted ray, and this point is called as point of incidence. Point of इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंस रे फॉल करता है, ठीक है, इज कॉल्ड एज पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द reflected ray will and the bending of light ray takes place from its original path is called as refracted ray। ठीक है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से ये बेंड कर जाता है, इसी रेस को कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। नाउ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, इसी को इंसिडेंट एंगल कहेंगे। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड एंगल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, so now we'll move on ki depending upon different refractive index of the medium how a light ray moves. So this is first condition in which this light ray, incident ray, moves from optically rarer medium towards optically denser medium. So if it is moving from optically rarer medium towards optically denser medium, the light ray will bend towards normal. ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि अब ये जो हमने पढ़ा है ये तभी होगा जब ऑप्टिकली डेंस रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है। जब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वाले पे जाएगा तब वो लाइट रे बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का होगा उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा और ज़्यादा बेंड करता चला जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो अब एयर एज इट इज़ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते चले जाएं तो ये रे और बेंड करती चली जाएगी और बेंड करती चली जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकंड मीडियम बिकॉज द फर्स्ट मीडियम इज कांस्टेंट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन इन विच अ लाइट रे गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम into optically rarer medium. Suppose करो this is water, light ray moves from water towards air, ठीक है। so it will move away from the normal, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अगर लाइट रे वाटर से ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाता है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे नाउ, ठीक है, जिस क्योंकि एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ it will move away from the normal and this angle is called as refracted and this angle is called as incident ray, incident angle. Okay, incident ray and refracted ray. So this is most important thing because it has got lot of application, बहुत सारे application है। इसके बारे में यहीं पे मैं आपको बहुत सारे examples बता देता हूँ। Because of which suppose this is a light source, पानी के अंदर एक light source डाल दिया आपने, ठीक है, तो ये लाइट सोर्स डिफरेंट लाइट प्रोड्यूस करेगा और ये बाहर खड़े हो आप, तो आपकी आंखों पे लाइट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आता है, तो आपको लगेगा कि ये लाइट सोर्स यहाँ पे है, ठीक है। सो इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ एप्लीकेशन। देखो आपको आप समझ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो बिकॉज हाउ यू आर एबल टू सी एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इफ द लाइट द रिफ्लेक्टेड लाइट कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या उस ऑब्जेक्ट से लाइट आनी चाहिए हमारी आंखों में, तभी हमें लगेगा कि उसी पर्टिकुलर एंगल पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इफ विल सी इट फ्रॉम विद इन एयर यूल सी, और पानी के अंदर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लाइट सोर्स यहाँ पे है, नॉट यहाँ पे। एक्चुअली में उसका एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ। और जो सरफेस से कितना नीचे आपको दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और एक्चुअल डेप्थ को हम रियल डेप्थ भी कहते हैं, रियल डेप्थ, एंड दिस इज एपरेंट डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ। सो जो आप बाहर से देख रहे हो तो कितना सरफेस से नीचे है, ठीक है, तो वो दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ। ओके, एंड व्हाट वुड बी द शिफ्ट, कितना का शिफ्ट हुआ है ऊपर, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हम शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ आप तभी देख पाते हो जब उससे लाइट निकलेगी, ठीक है। तो ये अगर लाइट सोर्स आपको ऊपर दिखाई देगा तो आपको ये रेज्ड दिखाई देता है, तो इसलिए पानी में जो भी चीज़ आपको होती है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है, शैलोअर दिखाई देता है उसका सरफेस। Like if I'll talk about your swimming pool, if you'll see it from outside, it will appear to be shallower, आपको उतना गहराई नज़र नहीं आती, बट एक्चुअल में उसका डेप्थ जो होता है वो यहाँ पे होता है। सपोज करिए दिस इज द डेप्थ, तो आपको डेप्थ थोड़ा सा और ऊपर नज़र आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसलिए रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ऐसा होता है, ठीक है। ऑल्सो अ कॉइन विच इज प्लेस्ड विद इन a glass container which is filled with water appear to be raised, थोड़ा सा और बाहर से देखेंगे तो आपको ग्लास और ऊपर नजर आएगा, ठीक है। दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
whenever light moves from denser medium into lighter medium, or whenever light moves from refractive the medium from in which the refractive index is more to the medium in which refractive index is less, it will move away from the normal, away move karega. So because of which the light appear to be raised. Same is the case in which if a pencil is being immersed inside a liquid, ठीक है, तो पेंसिल का आप थोड़ा सा इंक्लाइंड पानी के अंदर ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वो रेज नज़र आता है, बेंड नज़र आता है, ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. और भी एप्लीकेशन है लाइक ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, बिकॉज योर एटमोसफेयर हैज़ गॉट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमोसफेयर का कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर इज नॉट कांस्टेंट. एज यू मूव अवे अप टू द ऑल्टीट्यूड, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स or you can say the density of the gas molecules will kept on decreasing, because of which the refractive index of different the refractive index of atmosphere is not constant. So because of which you'll see the twinkling of a star. You can see also mirage भी देख सकते हैं आप, ठीक है. and advanced sunrise and late sunset भी देख सकते हैं. ये भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको. देखो, सपोज करो यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है, आप यहाँ पे, दिस इज़ योर होराइजन, इतना देख पाते हो आप, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट और होराइजन, ठीक है. एक्चुअल में होता क्या है, दिस एटमोसफेयर हैज़ गॉट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर. द अर्थ हैज़ गॉट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, ठीक है, and which is having different density. So that means that the refractive index of different layers would be different. So अब क्या होता है, सपोज करो आपके होराइजन से पहले ही सन है, ठीक है, सन आपको देखना है, सनराइज. तो एक्चुअल में होता क्या है, सनराइज जैसी एटमॉस्फेयर में हमारे एंटर करता है, वो बेंड करते हुए आपकी आंखों पे आ जाता है, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस लाइट रे बेंड्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो बेंड करते हुए आया, तो आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही आपको होराइजन पे सन दिखाई देता है. ऑल्दो वो अभी आपके होराइजन पे नहीं है, तो 15 मिनट बाद ऊपर आएगा, बट 15 मिनट पहले ही आपको होराइजन से पे दिखाई दे देगा. सो दिस इज कॉल्ड एडवांस्ड सन राइज, ठीक है. दिस फिनोमेना आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. सेम इज द केस फॉर सनसेट. सनसेट में भी दिस इज योर होराइजन, यहाँ तक देख पाओगे आप. तो जब वो और होराइजन से और आगे तक चला गया है, ठीक है, दिस इज योर एटमॉस्फेयर, तो लाइट विल कम एंड बैंड लाइक दिस. तो आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सन दिखाई देगा होराइजन पे, ऑल्दो वो ऑलरेडी सेट हो चुका है, आपके होराइजन से भी और आगे जा चुका है. सो दिस इज कॉल्ड डिलेड सनसेट, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन. तो ये केस तो डिफरेंट एप्लीकेशन इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है. इस पर्टिकुलर बेंडिंग ऑफ लाइट के डिफरेंट एप्लीकेशन बता दिए हैं. एंड व्हेन इट वॉन्ट मूव, व्हेन द लाइट रे डजंट बैंड, कब बैंड नहीं करेगा भाई, ऑब्वियसली बात है, कब बैंड नहीं करेगा, व्हेन इट इज मूविंग, व्हेन इट कम्स इन द पोजीशन परपेंडिकुलर टू द टू इंटरफेस. 90 डिग्री पे अगर आएगा तो इट वॉन्ट बैंड. एयर टू वाटर, इधर वाटर टू एयर, चाहे वाटर से एयर में जाए तो एयर से वाटर में जाए, ठीक है, इट वॉन्ट बैंड, सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है. सो बेंडिंग ऑफ लाइट ओनली टेक्स प्लेस व्हेन लाइट, ऑब्लिक लाइट कम्स एट एन इंटरफेस, ठीक है. तो ऑब्लिक लाइट आएगा तो ऐसे बेंड करेगा, ठीक है. तो अगर इफ इट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू, सो इट विल मूव अवे, ठीक है. सो जस्ट लाइक दिस. नाउ विल मूव ऑन टू दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के कौन कौन से लॉज होते हैं. फर्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट क्या हो गया, दैट मीन्स कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन. इसका मतलब सपोज करो दिस इज इंसिडेंट रे टू द सरफेस, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अब थोड़ा ऐसे जाएगा, बेंड करेगा, ठीक है, और ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये सारा एक ही प्लेन में होंगे. ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे आया तो रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस टाइप से चला गया, ठीक है. सो दिस इज डिफरेंट प्लेन, ठीक है. तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंस होता है,
और लाई इन अ सेम प्लेन, सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं. सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट if this is angle I and this is refracted angle, light ray comes and goes like this, it says that sine of incident ray to the sine of refracted ray remains constant. That means कि sin I by sin R remains constant of any particular सरफेस. कोई भी दो सरफेस के बीच में रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर वुड रिमेन कांस्टेंट. और इसी कांस्टेंट को कहते हैं हम, सपोज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रहा है तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है, तो ये दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज ऑप्टिक रेयर मीडियम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड refractive. Sin I by sin R is called as refractive index of second medium with respect to first. This is termed as refractive index of second medium with respect to first. ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम साइन आई बाई साइन आर विच इज इक्वल टू μ21. ओके, एक चीज़ और याद रखें, इसको और ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ21 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1. ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको. ठीक है, इसी को कहते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं हम, दिस इज अ रेशियो ऑफ μ2 बाई μ1. okay, which is called as refractive index of second with respect to first, which is equivalent to sin I by sin R. तो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर डिवाइडेड बाय रेयरर का रेशियो होता है वो sin I बाय sin R के बराबर होता है. ठीक है, सो अब हम क्या कहेंगे, अगर आप डेफिनेशन बताएंगे तो यू कैन इजीली से व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. You can say that μ21 is nothing but μ2 by μ1 is called as sin I by sin R. ठीक है, you can say that what is refractive index of second with respect to first. It is the ratio of refractive index of second with respect to first is the ratio of sine of angle of incident in first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium is called as refraction index of second with respect to first. ठीक है, तो ये चीज़ हम इजीली कह देंगे, डिफाइन भी कर सकते हैं हम. ठीक है, एंड व्हाट वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्या होगा, μ1 बाय μ2. सो इट वुड बी इक्वल टू साइन R बाय साइन I. उल्टा रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, साइन I बाय साइन R. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो से कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है. सो द लाइट में बेंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड करता है, और बेंडिंग और रिफ्रैक्शन इसलिए होता है बिकॉज लाइट हैज़ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम दे मे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो जाएगा मीडियम का डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. और ये भी पढ़ चुके हैं हम कि जिसका ज़्यादा डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट और कम होती चली जाएगी, तो बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इफ लाइट रे मूव्स विद द स्पीड ऑफ V1 in this particular medium and it moves with the speed of V2 in this particular medium, तो V1 बड़ा होगा कि V2. ऑब्वियसली बात है V1 इज ग्रेटर देन V2. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डेंसर लाइटर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है लाइट का, और डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है. ठीक है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2. सो और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सो यू कैन इजीली राइट V1 बाय V2. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप सीधा लिख देंगे V1 बाय V2. तो ये सारा एक्सप्रेशन आपको याद रखना है. अगेन एक और टर्म याद रखना है, आई लेट यू नो, एक और चीज़ याद रखना है तो आपको थोड़ा सा बता देंगे. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R.
ठीक है, पहले वाले मीडियम का आई डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम का आर, ठीक है, इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, ठीक है. सो now I'll come to what is refractive index. This is nothing but refractive index of any particular medium with respect to another medium. वो किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, साइन आई एंगल ऑफ इस पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे तो डिपेंडेंट है ही, इन दोनों का रेशो. ओके, और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज होते हैं while लाइट मूव्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर मीडियम इनटू अनदर. तो अभी हमने बताया कि एक पैरामीटर तो है कि दैट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे विल चेंज, डायरेक्शन चेंज, स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, दैट इज सेकंड कंडीशन. फर्स्ट क्या क्या चीज़ चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड स्पीड ऑफ लाइट रे विल चेंज, थर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट वुड ऑल्सो चेंज, ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज होता है लाइट रे का, because light is a wave, so it may have wavelength, it may also have it would also have frequency, ठीक है. और एक चीज़ जो नहीं चेंज होता है while it is moving from one particular medium into another, चाहे रेयर से डेंसर जाए तो डेंसर से रेयर जाए, एक चीज़ जो नहीं चेंज होती है वो है फ्रीक्वेंसी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है. फ्रीक्वेंसी सपोज करो लाइट एयर से रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर एफ है हर्ट्स तो यहाँ पे भी एफ हर्ट्स ही होगा. क्या चेंज होता है, स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है. अब वेवलेंथ कैसे चेंज होगा अभी आपको बताते हैं, ठीक है. तो एज ऑफ नाउ हमें डायरेक्शन पता चल गया कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन सेम नहीं जाएगा, ठीक है. और क्या क्या होगा, स्पीड विल चेंज, ठीक है, वेवलेंथ विल ऑल्सो चेंज, विल लेट यू नो. तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है. दिस इज सपोज एंगल आई, दिस इज आर, दिस इज V1. ओके, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं. ओके, अब देखो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज दिस मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1. सपोज करो लाइट की स्पीड इस मीडियम में v1 है, इस मीडियम में v2 है, एंड ऑल्सो v2 इज ग्रेटर देन v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे ही स्पीड घट जाएगी उस मीडियम में, ठीक है. एंड सो यू कैन इजीली राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये भी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू उल्टा कर देते हैं हम, V1 ऊपर नीचे V2, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे. अब बताओ, हमें पता है कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड V1 है एंड स्पीड ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. ये हम ऑलरेडी साउंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सपोज करो लाइट की फ्रीक्वेंसी f हर्ट्स है, मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, और इस मीडियम में वेवलेंथ λ1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा से डिनोट करते हैं, उल्टा y, ठीक है, इनवर्स y, स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय, सपोज करो इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, वेवलेंथ कितनी है इसकी, λ2 मीटर, ठीक है, इसमें कितनी है λ1 मीटर, ठीक है. तो यू कैन इजीली राइट f बाय λ1 इज इक्वल टू f बाय λ2. तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इस मीडियम और इस मीडियम में कांस्टेंट रहेगा. फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाइल इट इज चेंजिंग मीडियम, चाहे वो रेयर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयर में जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. क्या चेंज होती है, अगर वो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो उस डेंसर मीडियम में स्पीड घट जाएगी, और स्पीड घट जाएगी, ये घट जाएगा तो ये भी घटना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है. तो ये इसको घटाने के लिए आपको वेवलेंथ भी घट जाएगा, ठीक है. सो आप ये भी कहेंगे द वेवलेंथ विल ऑल्सो डिक्रीज. अगर जैसे ही इफ इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम ऑफ अ लाइट वुड डिक्रीज, ठीक है. स्पीड डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, और ठीक है, और बाकी आपका क्या कहते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी वुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. सो यू कैन इजीली राइट इट लाइक दिस, इट इज ऑल्सो इक्वल टू λ1 बाय λ2 मीटर. तो ये एक्सप्रेशन एक और हो गया जो आपको याद रख लेंगे.
ठीक है। तो इससे सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब एक चीज़ और भी याद रख लेते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एयर के और वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम बताएंगे तो उसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ विल कंपेयर इट विद वन मीडियम विच इज एयर या वैक्यूम ले लो, क्योंकि वहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम होती है और वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 1 होती है, ठीक है। तो सपोज करो दिस इज म्यू एयर, ठीक है, दिस इज म्यू वाटर, ठीक है, वाटर ले लिया हमने। तो लाइट रे वुड कम लाइक दिस एंड वाटर ले लो या सेकंड लेट इट बी एनी पर्टिकुलर मीडियम म्यू 2, जिसके बारे में नहीं म्यू एम ले लो, ठीक है। सपोज दिस इज एनी पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है। तो इसी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इफ यूल कंपेयर इट विद द स्पीड ऑफ इफ यूल कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू the refractive index of a medium with respect to refractive index of vacuum. Okay, so absolute refractive index of medium, any particular medium, is nothing but refractive index of a medium with respect to refractive index of vacuum or refractive index of air. So we can easily write mu m is nothing but mu m by 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है 1 होता है, म्यू एयर इज इक्वल टू साइन आई, ये अभी यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं, वेलोसिटी के टर्म में ले लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज और इन एयर इज c, तो यू कैन इजीली राइट c बाय, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस पर्टिकुलर मीडियम इज v, ठीक है। तो यू कैन इजीली राइट म्यू m इज नथिंग बट c बाय v, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। वो अगर हम एयर के कंपैरिजन में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। और एयर के अंदर जो स्पीड लाइट की कितनी होती है c होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी इस पर्टिकुलर मीडियम में हम इजीली निकाल सकते हैं। सो इट इज नथिंग बट, it can also be said that it is a ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in that particular medium. तो आप ये भी definition लिख सकते हैं, refractive index of any particular medium is also the ratio of or with respect to air is the ratio of speed of light in vacuum or in air to the speed of light in that particular medium. तो आप अगर मान लो, अगर मैंने बोला अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट इट बी वाटर, ठीक है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 4/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे हम, तो वाटर इज नथिंग बट 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड बाय स्पीड, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ एंगल बाय एंगल, तो अगेन उसका कोई रेशियो नहीं होगा। इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेवलेंथ बाय वेवलेंथ, तो इसका कोई रेशियो नहीं होगा, ठीक है। 4/3 होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम निकालेंगे वाटर के अंदर, तो इजीली निकल जाएगा। v इज नथिंग बट 3 × 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर ले आप, इजीली वाटर में निकल जाएगा कितनी स्पीड है लाइट रे की, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस स्मॉलर एप्लीकेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर इस टाइप से निकालने के लिए आया तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। देखो, सो अगर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आया, ठीक है, सपोज करो वाटर है, दिस इज नथिंग बट वाटर इज नथिंग बट यू कैन इजीली राइट c बाय वेलोसिटी इन वाटर, ठीक है। और अगर मैं बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितना होगा भाई, इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज c बाय वेलोसिटी इन ग्लास, ऐसे लिख देंगे। और व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इट इज नथिंग बट mu2 बाय mu1। अगर हम बोले व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर,
ठीक है, इट वुड बी इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और म्यू जी भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट वुड बी इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, यही होगा, ठीक है। तो इजीली आप ये भी लिख सकते हैं, सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसका रेशियो ऐसे भी लगाएंगे सी बाय वी जी डिवाइडेड बाय, क्योंकि ग्लास का दिस इज नथिंग बट दिस टर्म सी बाय वी डब्ल्यू, अगेन वही आ जाएगा आपका वी डब्ल्यू बाय वी जी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उल्टा हो जाता है इनवर्स, बिकॉज refractive index of any particular medium is inversely proportional to the speed of light in that particular medium, ठीक है। तो ये टर्म भी हम इजीली निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। स्पीड ऑफ, अगर वाटर में दे रखा है एक मीडियम में, ग्लास में स्पीड दे रखा है, तो वाटर में इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्रेशन भी याद रहना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज क्लोज टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज क्लोज टू 4/3 which is nothing but 1.33, ठीक है। 1. ये दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का है, ठीक है। अगेन आपकी इम्प्योरिटीज डालोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। So this is all about how you can easily compare the refractive index or absolute refractive index or refractive index of one medium with respect to another, how the bending of light will take place, what is the physical phenomena of it, day to day life में क्या क्या examples हैं, ठीक है। आपके इधर क्या कहते हैं, आपके environment में इसका क्या क्या application है। If you relate all these things with your environment, then your study would become very much easier, ठीक है। आपको अच्छा भी लगेगा, समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। If you relate the things with respect to your surroundings, then the thing would be easier to you. So that means you are studying nothing but you are studying about your surrounding, आप surrounding के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। surrounding में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं आप। So that is called as nothing but physics, ठीक है। Physics is nothing but study of nature and natural phenomena happening in the nature is called as physics, and it has got a wider application, बहुत सारे application है physics में। physics में आप सब कुछ पढ़ सकते हो, like how I might have told you कि how your heart is functioning, it is also because of current, ठीक है। सिमिलर वेल्व होता है इसमें, ठीक है, बहुत सारे वेल्व्स होते हैं, ठीक है। एंड देयर इज वन पर्टिकुलर ऑर्गन विच सेंड द सिग्नल फॉर अ हार्ट टू पंप, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और योर ब्रेन इज ऑल्सो फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ करंट, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, कि आपको कोई हॉट या स्टिमुलस आ गया, ठीक है, कि हाथ एकदम से हटा लेना है, एक हॉट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, आपके हाथ पे लग गया, ठीक है, तो एकदम से हटा लेना, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, यू माइट हैव सीन इन बायोलॉजी, ठीक है। सो दैट आल्सो हैपन्स बिकॉज द सिग्नलिंग, द चैनलिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ करंट इज पासिंग, बिकॉज ऑफ करंट, ठीक है। गैंग्लियंस के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, देन द आयंस मूव्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर, ठीक है, वन गैंग्लियन इनटू अनदर, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट मूवमेंट ऑफ चार्ज ही होता है, ठीक है। सो इट हैज़ गॉट डिफरेंट एप्लीकेशन आपके डे टू डे लाइफ में, आपके अंदर, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में जो फिनोमेना हो रहा है, द फिजिक्स हैज़ गॉट लॉट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन गिवन इन फिजिक्स ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल नेचर्स, ठीक है, जो हम स्टिल वी आर लर्निंग, ठीक है, हम अभी स्टिल लर्न करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लर्न करते हैं, ठीक है। सो वी आर स्टिल लर्निंग, हमें सब कुछ तो नहीं आता, वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, ठीक है, एंड वी शुड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लर्न, हमें हमेशा लर्न करते रहना चाहिए। ओके, चलो आपको एक थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक बता देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडियम। एक फैक्टर तो आपको बताया है, कौन सा फैक्टर होता है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मीडियम। इफ speed of light in decreases in that particular medium, ठीक है, तो refractive index of that medium is less as compared to previous medium, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे denser medium होता चला जाएगा तो the speed of light in that particular medium will be less. If less the speed, the more would be the refractive index, ठीक है। Second अब क्या condition है, that is like ambient environment, like temperature पे कैसे डिपेंडेंट होता है। देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी, इट विल मूव अवे, तो दैट मीन्स द डेंसिटी विल डिक्रीज, सो बिकॉज ऑफ विच स्पीड ऑफ लाइट वुड इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी हाँ कम हो जाएगी मीडियम की, ठीक है, और वो थोड़ा सा रेरर हो जाएगा, ठीक है, रेरर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें स्पीड बढ़ जाएगी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ओके, सो लाइकवाइज यू कैन इजीली से, और अगर टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, और एक और चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज़ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ तो आपको ये नेचर ऑफ मटेरियल पता चल गया, एंड टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इंक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, तो स्पीड करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना, तो स्पीड बढ़ाने पे क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और स्पीड घटाने पे, उस मीडियम में घटने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होता है देख लो, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइक वेवलेंथ ऑफ वन पर्टिकुलर कलर, ठीक है, कलर ऑफ वेवलेंथ। तो हमें पता है लाइट इज कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स लाइक विबग्योर, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। वेवलेंथ पे डिपेंडेंट कैसे होता है अभी बताते हैं, देखिए। तो अब हमें पता है अगर वेवलेंथ बढ़ाने पे, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ाने पे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम रहता है। ऑलरेडी हम आपको बताया था कि स्पीड बढ़ने पे क्या कहते हैं, स्पीड घटने पे, ठीक है, स्पीड घटने पे वेवलेंथ भी घटेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मीडियम, सपोज करो एक मीडियम है, मैं सिर्फ एक मीडियम की बात करता हूँ, मैं डिफरेंट मीडियम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर लाइट रे इफ इट इज मूविंग फ्रॉम एयर इनटू एनी पर्टिकुलर मीडियम, किसी भी एक मीडियम में जाता है, तो होता क्या है, सपोज करो दिस इज ग्लास, or you can say this is glass slab. You need to know the speed of all these waves, Vibgyor or composed, that is light, is constant in air, is constant in air or in vacuum, that is 3 into 10 to power 8 वही होता है। तो इसका मतलब कि एयर के अंदर एयर का सबका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबका जितने भी जितने भी वेव्स हैं, कलर्स ऑफ वेव्स हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में एयर में 1 ही होगा। सो व्हाइल इट इज चेंजिंग मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर वुड बी डिफरेंट इन वन पर्टिकुलर मीडियम। तो इसका मतलब कि और जितने जितने मीडियम से, अब ये क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर सबका स्पीड सेम ही था, और दूसरे मीडियम में सबका स्पीड डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाता है, वॉयलेट का, एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, ठीक है। रेड से ज़्यादा वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। सो और याद रखें कि और उसका वेवलेंथ रेड का ज़्यादा है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू वॉयलेट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा बेंड भी करता है, ये भी याद रखना। अगर वो डेंसर से बाहर की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा बाहर की तरफ निकलेगा, अगर वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज़ मोर, सो द वॉयलेट ये वाला होगा, सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, और रेड ये वाला होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। सो इट वुड गो लाइक दिस। सो फॉर एनी वन पर्टिकुलर मीडियम, refractive index of different colors of the light ray would be different, and the refractive index of violet would be greater than the refractive index of red. So refractive index, so the violet light will bend more towards normal as compared to red color, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि and it happens because different lights have different speed in one particular medium.
तो आप कह सकते हैं कि वॉयलेट की स्पीड ज़्यादा होगी कि रेड की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। रेड की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ रेड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वॉयलेट रे इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इससे थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कि क्योंकि रेड की स्पीड ज़्यादा है, क्यों रेड की स्पीड ज़्यादा है, सो दैट्स वाई रेड ज़्यादा है स्पीड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होगा, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कम्पेयर टू वॉयलेट। सो एज ऑफ नाउ हमने ये सब चीज़ें पता किया, ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में पढ़े आज के लेक्चर में, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट किया, रिफ्रैक्शन के बारे में समझा, ठीक है। एक एनी पर्टिकुलर सरफेस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है एंड रिफ्रैक्शन भी होता है, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे गोज इनटू रिफ्रैक्शन एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच पॉलिश इज दैट पर्टिकुलर सरफेस। We have also learnt about different application in day-to-day life of refractions and also apparent depth and apparent height के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा। एक चीज़ और आपको जाते जाते आपको थोड़ा सा आपको बता दें कि जो हमने डेप्थ apparent depth के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जानना ज़रूरी है आपके पास। देखो शिफ्ट जो आपको बताया था मैंने, दिस इज इट, शिफ्ट कितना रेज नजर आता है, ठीक है। सो आप अगर इफ इट इज एयर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं ये वाला, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1, ये इट दिस वुड बी इक्वल टू, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है, दिस इज नथिंग बट म्यू डब्ल्यू, इट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ये याद रखेंगे। इससे आप फॉर्मूलाज भी याद रखेंगे, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो म्यू डब्ल्यू कोई भी पर्टिकुलर मीडियम में, एंड दिस फिनोमेना इज एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन light is moving from denser towards rarer medium. Mu w is nothing but real depth divided by apparent depth, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1, सो रियल डेप्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू apparent depth, तो इट इज अ रेशियो, क्योंकि रियल डेप्थ बड़ा है, आप apparent depth डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ नहीं करेंगे, क्योंकि देन रेशियो वुड बी लेस देन 1। सो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ज्यादा है, तो आप सीधे डायरेक्ट याद है फॉर्मूला याद रखें, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय apparent depth, बिकॉज रियल डेप्थ इज मोर देन apparent depth, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड अप टुडेज सेशन। आई होप कि आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़े हैं, इसको गो थ्रू करो, ठीक है, अच्छी तरह से देखो, नहीं समझ में आता फिर से आप लेक्चर्स देखें, एंड प्रीवियस जितने भी साउंड्स के लेक्चर हैं सारे आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। ओके, विद दिस आई विल एंड अप टुडेज सेशन, थैंक यू।